अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हम्माद है and I am starting this new podcast with in collaboration with Shaheen Advisors that is aiming to educate the populace, primarily the students, कि हमारे लिए क्या बेहतर है, सही है? Today we're going to discuss about why our consultancy is important, how to select the best consultancy for yourself, and whether do you need a consultancy at all. And inshallah ta'ala, if the response to this video is good, we'll talk about which countries should you go to. We'll invite specialists. But in any case, today we have a very special guest with us today that essentially I would say is one of the pioneers of this industry in Pakistan. She's been at the forefront of study abroad advisory for the past, I guess, 16 years or so. So please welcome Ms. Shaheen Malik on the show. Thank you, Ahmad. I'm really good and happy, excited as well. Yeah, I'm glad. So talk to me through why did you start this particular business? वो भी अच्छे खासे साल पहले, like what, I guess 2010? 10. Yeah, so what was, आपको क्या gaps दिखे कि आपने सोचा, okay, this is something that I can step in और मैं इस मसले को हल कर सकती हूँ, या फिर you wanted to see that this is something that is relatively new in Pakistan. हालांकि काफी अरसे से like I can't recall मेरे बड़े cousins हो गए या फिर इतने लोग कब से जा रहे हैं बाहर, लेकिन कोई एक बड़ा सा ना, it's almost like एक बला सी है कि यार बाहर जाना है, किस तरह जाए, कैसे जाएं उसका। तो क्या वो ये सोच थी आपकी कि यार I want to make this more accessible to people? At the first part of the question कि मैंने शुरू कैसे किया, I was running an academy for the cadet students, तो वही बच्चों की नीड थी। मेरा तो कोई प्लान नहीं था इस स्टडी अब्रॉड या वीजा कंसल्टेंसी में जाने का। तो जब उन स्टूडेंट्स को जरूरत थी कि वो कैसे बाहर जाएं, तो इधर उधर जब देखा तो पहले तो हमने उनको हेल्प लेके दी। देन आई स्टार्टेड बाय माय सेल्फ, और हमने खुद से ही ये शुरू कर दिया उन बच्चों की खुद ही कंसल्टेंसी करनी। और दूसरा, यस, मुझे देख के बहुत सी फीमेल कंसल्टेंट्स इंडस्ट्री में आई, बहुत सी, लाइक अब तो मैं एक मेंटर हूँ फॉर द लेडीज इन दिस इंडस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन अब्रॉड। और अनडाउटेडली तीसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का कि यस, अभी बहुत जरूरत है स्टूडेंट को कि उनकी करियर काउंसलिंग की जाए कि उनको क्या कहाँ पढ़ना है। मेजर जो एक है हमारी फ्लॉ, स्टूडेंट्स को नहीं पता क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स वो प्री लेवल पे पूरी कर लें। A2 से ही पूरा करना शुरू कर दें, O2 से ही शुरू कर दें, किस स्टेज पे वो जाना चाह रहे हैं। तो वो सारा हम कंसल्टेंट्स ही हैं, जो स्टडी एडवाइजर्स हैं, वही बेहतर गाइड कर सकते हैं। Exactly. I feel कि before we need to give a disclaimer to the audience कि please do bear in mind that this is not an ad, say, of any sort. ठीक है, I have no connections whatsoever with study abroad. So yeah, but essentially what we're trying to figure out is कि what's the ecosystem like? ठीक है, like we want to understand. We want to deep dive into how it works. So yeah, what are the goods? What are the bads? What's the necessary aspect of it? ठीक है, so just want to give that clarity to the audience, and to you as well. तो आपने बात की कि you felt that students को इतना अंदाजा नहीं होता है कि like how do we approach this problem, and I feel that is true. Like when I was जब मेरा इलेवेंथ चलता था, तो I feel we had an in-house counselor, और वो बस बताते थे कि अच्छा आपके grades ये हैं, आपके पास ये, but I feel there's so much more to it. Like I've heard that there's you can आप अपनी social और extracurricular activities की basis पे you can even get into Ivy League universities if you have decent आप कह लें grades and whatnot. So moving from that angle, what do you feel कि as an institution, what are consultancies to begin with? क्या पहलू होते हैं consultancy में, especially in advisorship of studying abroad? हम आप being neutral at moment, इस टाइम मैं चाहूंगी बिल्कुल न्यूट्रल। Yes, very important I feel। अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रही, मैं इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रही हूँ। बिल्कुल। तो जब बच्चा सोचता है या उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि
अच्छा ठीक है, हाई स्कूल के बाद उसको बाहर चले जाना चाहिए। हाई स्कूल मीन FAFSC, ICOM, DAE, A level, whatever they have completed। आजकल अमेरिकन हाई स्कूल का ट्रेंड चल रहा है, तो whatever they have। तो उस टाइम हमें A2 पे जरूर प्लान करना शुरू कर देना चाहिए, rather A1 पे, कि बच्चे की इंटरेस्ट क्या है जो स्कूल्स में नहीं हो रहा इस टाइम। बच्चे की इंटरेस्ट देख ली, अच्छा उस टाइम तो शायद वो बच्चे ने हमें मिस कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर उसके पास बायो है, फिजिक्स है, मैथ है, उसे कुछ भी पढ़ा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इंजीनियर बन सकता है और वो सिर्फ डॉक्टर बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हंड्रेड्स आर द सब्जेक्ट्स देयर इन द वर्ल्ड। इतने नए सब्जेक्ट्स हैं आपके, और रोज नए आ रहे हैं, रोज नए आ रहे हैं। आज मुझे पर्सनली एक कॉल थी, म्यूजिक उसने पढ़ा, तो आगे वो कहीं एडजस्ट नहीं होगा। और मुझे इतनी खुशी हुई कि बच्चे थोड़ा यूनिक प्रोग्राम को डेयर करते हैं कि हाँ ठीक है हम ये पढ़ लें, थैंक्स टू द पेरेंट्स कि वो भी समझ रहे हैं कि कुछ। तो इसमें मेरा क्वेश्चन और बल्कि आपके लिए आंसर ये है कि बच्चों को जरूर कंसल्टेंट से कांटेक्ट करना चाहिए। लाजमी नहीं कि पे करें, जाके अपना केस तो डिस्कस करें, नई ऑप्शन समझें। उन्होंने अगर सोचा हुआ है कि USA का मतलब न्यूयॉर्क है, उन्होंने सोचा है कि UK का मतलब लंदन है, उन्होंने सोचा हुआ है कि कनाडा का मतलब सिर्फ टोरंटो है, तो अगर किसी के पास जाते हैं तो इन कंट्रीज का मतलब सिर्फ उनके मेजर सिटीज नहीं है, बहुत दुनिया है, बहुत सब्जेक्ट्स है, उनको अपनी आईज ओपन करनी है। Agreed. And so circling back to what constitutes of a consultancy, like consultancy क्या होता है? So आपके पास advisors होंगे, student advisors होंगे, Yes. फिर you would have a partnerships team, और कौन होते हैं एक consultancy की टीम में, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले as to how the business works। अच्छा, डिपेंड्स, स्टूडेंट और पेरेंट और इंस्टीट्यूट जो भी किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उनको केयर करनी है कि वो जो कंसल्टेंट या स्टडी एडवाइजर कंपनी है वो ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड हो, पायर वेरीफाइड हो, ISEF की मेंबर हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन स्टेजेस इतनी टफ हैं कि कोई सिंपली उठ के ISEF का मेंबर नहीं बन सकता। ISF यानी कि International Students Foundation, something like that? No, it's an organization, international organization for the study abroad consultant. It's a bridge company in between education and service provider and study advisors। ये दोनों को मिलाते हैं, लेकिन इनकी वेरिफिकेशन दोनों एंड पे बहुत स्ट्रिक्ट। I see. तो इसलिए अगर इनकी मेंबरशिप है, ब्रिटिश काउंसिल का प्रॉपर एक एग्जाम है जो मैंने भी दिया है, और फिर उसकी सर्टिफिकेशन होती है, फिर पायर का एक प्रॉपर एग्जाम है, उसके पेपर्स हैं, उसकी रेट शीट होती है, जो मैंने भी दिया है और भी हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोगों ने दिया। Brilliant. और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, कि इसको तो बिल्कुल थंबनेल बना लें कि जब भी किसी भी कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं, ट्यूशन फीस का जब लेटर आए उसको वेरीफाई करें, और किसी के हाथ में कैश मत पकड़ाएं कि तुम मेरी फीस जमा करा। Yes, बिल्कुल, and I feel this is a very important part of our conversation, and I would really like to bring it up in the later parts of it. Ke, what are the things that we want to look out for? But let's pause that. Let's bring it back for a moment and see के कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में। आप लोगों को मैंने काफी देखा है कि यार कि कराची में, आई एम फ्रॉम कराची, सो एक पूरी देयर इज दिस रोड कॉल्ड आई थिंक राशिद मिनास रोड, ठीक है, बहुत बड़ी है, बहुत लंबी, एंड उस पे 2 or 3 किलोमीटर की पूरी एक पट्टी है जिसपे सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसीज हैं, एंड नॉट से कि एक कंसल्टिंग है भाई, इट्स लाइक one on top of another, ठीक है, बड़े बड़े नाम है, एंड मैंने देखा है रोजाना हजारों बच्चे वहां रुल रहे हैं, कर रहे हैं। सो इस चीज को मिटिगेट करना, लाइक लोगों को एजुकेट करना हमारा मकसद है फॉर दिस पॉडकास्ट प्राइमरली, कि पीपल टू एजुकेट देमसेल्व्स कि यार how can you select a consultancy for yourself, what's the best course of action for you, and I feel उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि what are the most common misconceptions about consultancies। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी इंडस्ट्री इतनी बदनाम है ना सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से। और मैं बहुत ओपनली इस टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा बता रही हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों का भी कसूर है जो जाके टेबल्स पे पैसे रखते हैं। ये मैंने भी देखा, ये लें जी ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये लें जी UK जाना है, बस पैसे बताएं कितने,
अब वो कंसल्टेंट्स, एजेंट्स, स्टडी एडवाइजर्स का दिमाग खराब होता है, अच्छा खुला पैसा, तो हमारा दिमाग खराब ना करें, ठीक है। प्रॉपर इंग्लिश का टेस्ट लेके आए, 50% मार्क्स लेके आए, नहीं है तो रिपीट करें, 2 टाइम 3 टाइम रिपीट कर लें, और फिर अपने कंसल्टेंट को कहें कि ये लो मेरे डॉक्यूमेंट्स, अब मेरा एडमिशन करवाओ। वो फिर आपकी एलिजिबिलिटी और प्रोफाइल और बजट सारी चीजें देख के आपको सजेस्ट करेगा कि ये कंट्री, ये यूनिवर्सिटी, ये प्रोग्राम, फिर उसके ऊपर आप वर्किंग करें कि हाँ ये यूनिवर्सिटी की लोकेशन ठीक है, ये कंट्री में कोई मेरा फ्यूचर है, या यहाँ पे मैं अपने लिए कोई लिविंग एटलीस्ट निकाल लूंगा। दो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि पहले पढ़ लो, डिग्री ले लो, उसके बाद तुम लोगों को पीआर भी मिल जाएगी, टीआर भी मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी। आई फील ये भी बहुत बड़ा पाकिस्तान में, लेट्स अज्यूम एंड आई थिंक जब सीजन होता है तो 1000 बच्चा एक दिन में 1000 बच्चा बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, ये मुल्क कर्जे में है लेकिन पता नहीं किसके कर्जे में, बट इन एनी केस माशाल्लाह से लोग जा रहे हैं बाहर, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू कंसल्टेंसीज एंड स्टडी अब्रॉड एडवाइजरी फर्म्स लाइक योर्स, ठीक है, बट आई फील अ लॉट ऑफ इट इज ड्यू टू द फैक्ट कि यहाँ लोग सोचते हैं कि यार हमें बाहर ही जाकर अपनी जिंदगी बसानी है, एंड इट्स ओके इफ समवन थिंक्स लाइक दैट, इट्स कंप्लीटली ऑलराइट, ठीक है, एंड चांसेस आर के they might be better off if they play their cards well. So आपको क्या लगता है कि कितना impact पड़ता है, like obviously I feel किसी भी journey में one of the few important steps you take is the first one. Yeah. सही है. Always. And बाहर जाने की journey में पढ़ाई बाहर से करना is the first step. So for the first step to be the right step, आई फील उसमें कंसल्टेंसीज का बहुत बड़ा हाथ है, एंड व्हाट डू यू फील के कंसल्टेंसीज के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार एक बच्चे की जिंदगी है, वो पैसे लगा के बनाने जा रहे हैं, हमारा कितना बड़ा हम पे एक बोझ सा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी है कि हमें इसको ऐसे डायरेक्शन में करना है कि they're set for their life. तो what do you feel के do consultancies think that they shoulder this responsibility? एथिकली मैं देखूं तो होनी चाहिए। मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि आप लोगों का, स्टूडेंट्स का ₹1 मिलियन आप लोगों के स्टेक पे लगा हुआ है। अगर आप लोगों ने एक स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। जो मैं अपनी टीम को हमेशा एक स्टेटमेंट कहती हूँ और शायद डेली कहती हूँ कि बस केयरफुल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशंस एंड स्पेलिंग्स एंड टाइपिंग। तो ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे बहुत कम लोग लेते हैं। अच्छा, कि भाई बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो जाए, या बच्चा ऐसे कंट्री में ना चला जाए जहां पे वो कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर हम ये भी कह देते हैं जी हमारा काम तो स्टडी पे भेजना है, हमारा काम तो वीजा तक सपोर्ट करना है, गाइड करना है, असिस्ट करना है। हम ना पीआर लेके देते हैं, ना हम वीजा लेके दे सकते हैं। बिल्कुल। ये तो क्लियर स्टेटमेंट है। अब ये बच्चे की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बच्चे के पेरेंट्स की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। नो डाउट कि थोड़ा सा वर्किंग कर लो खुद। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 ऑप्शंस लें, एक कंसल्टेंट से, एक एडवाइजर से, फिर 2 दिन का पॉज लें, उसके ऊपर वर्किंग करें एंड देन टेक अ डिसीजन। बिल्कुल। सो इससे यही बात आती है कि लोग, जो आपने पहले कहा था कि यार लोग आते हैं, पैसे रख के देते हैं और भेज दो हमारे बच्चों को बाहर, भेज दो हमारी बेटी को बाहर। सो ये एक मेंटालिटी जो है, आई फील ये पाकिस्तान एंड आई फील अदर सूडो डेवलपिंग कंट्रीज में होती होगी कि यार बस सुनना नहीं है, झंझट नहीं जाए, बस कर दो, ठीक है। एंड आई फील ये शॉर्टकट वाली जो तौर तरीका है ना, यही इसी वजह से लोग बाहर जाके परेशान होते हैं। ठीक है, अगर उनको पता होता कि ओके I'm now in Germany, ठीक है, let's say आपने किसी स्टूडेंट को जर्मनी में, and I have a lot of family in Germany as well, जो कि गए थे बाहर पढ़ने for masters and what not. उन लोगों को ये पता था कि भाई कि इतने घंटे में काम कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे इतने साल इधर गुजारना है, मुझे ये वाले लैंग्वेज के एग्जाम्स देने, ये वो। अब मैं एक लड़का हूँ जिसके वालिदैन ने भेज दिया भाई जर्मनी जाओ, मैं वहां जाकर पहुंचा, मेरे तो 2 कोर्सेज इंग्लिश में ही नहीं है, मैंने A1 पास नहीं की, उसका काला पर्चा निकाल के दे दिया मुझे बराबर वाली जर्मनी कंसल्टेंसी ने। तो आई मीन ये चीज जो है ना, लाइक मनी वोंट सॉल्व योर इश्यूज हियर, इट विल ऐड टू योर इश्यूज हियर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू रिसर्च योरसेल्फ। Exactly. ठीक है, बट सिंस वी टॉकिंग अ लॉट अबाउट मनी राइट नाउ, एक सवाल उठता है कि अच्छा, तो ये कंसल्टेंट्स, ठीक है, लाइक they're trying to do good, they're trying to add to
to the educational quality of the country or the world or whatever, but in the sense how आप लोग का business model function किस तरह से करता है? Like is it solely based on commissions के हम यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे भेजेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, या फिर is it based on कि okay students will give us the money, या फिर it's a mixture of both? And where do you feel कि कौन से like हम अगला सवाल जो होगा इसका most probably होगा कि ये सारे पैसे जो आप बता रही हैं वो तो ठीक है, those are जायज because those are justifiable, लेकिन पैसे लेके किसी का नंबर आगे करवाना, किसी हकदार को साइड पे करके उसकी जगह उससे करवाना, ये सिस्टम भी होता होगा? नहीं, इस इंडस्ट्री में ऐसा। अच्छा। हमारे लिए एक स्टूडेंट आए, 10 आए, 200 आए, हम तो सबको वेलकम करेंगे ना। हाँ, ट्रू। तो इसमें जो मनी मेकिंग है, जब हम एग्रीमेंट करते हैं ना यूनिवर्सिटी के साथ, तो यूनिवर्सिटी के एग्रीमेंट में आता है पहले तो हमारे 5 प्रीवियस रेफरेंस चेक होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि हाँ जी इस बंदे या बंदी ने आपको स्टूडेंट भेजे थे, तो स्टूडेंट अभी स्टे कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कैसी है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट एंड क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरीथिंग उनसे पूछा जाता है। फिर वो जवाब देते हैं हाँ या ना। फिर उसके अकॉर्डिंग जब हमें नया एग्रीमेंट मिलता है, उसमें यूनिवर्सिटी हमसे पूछती है कि कितने पैसे लोगे भाई स्टूडेंट से सर्विसेज के नाम पे। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज को हम कहते हैं कि नहीं जी हम तो ट्रस्ट बेस्ड तो नहीं है भाई, हमें सर्विसेज के नाम पे इतना हम ले सकते हैं, $100 to $200, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी ट्यूशन में से लाइक हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं ना, हम उनके एम्प्लॉइज तो नहीं है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो फिर यूनिवर्सिटी हमें पे करती है। बिल्कुल। तो वही हमारे बेनिफिट्स होते हैं। ये स्टूडेंट जाके एजेंट ना बन जाए, हम प्लीज ना ये देख लो, अब ये ना हो कि स्टेटमेंट के बाद तुम लोग जाके एजेंट बन जाओ। नहीं, आई फील स्टडी एडवाइजर इज टोटली डिफरेंट टेरिटरी, इसमें एजेंट भी होते हैं। अच्छा मैं हम क्लियर करूं। हाँ, ये मुझे जरा बताएं। देयर इज अ लॉट ऑफ ये एजेंट वाला सिस्टम तो पाकिस्तान में हर जगह है। मैं नाजरा का ऑफिस जाऊं बाहर एजेंट खड़ा हुआ है, मैं लाइसेंस ऑफिस जाऊं बाहर एजेंट खड़ा हुआ है, मैं इम्तियाज जाऊं ग्रोसरी करने के लिए वहां एक एजेंट खड़ा है। तो हमारी इंडस्ट्री में भी एजेंट है। हमारी इंडस्ट्री में एजेंट क्या करते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में सारे बड़े कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं और छोटे शहरों में एजेंट बैठा हुआ है। एवरीवेयर देयर आर एजेंट्स। तो एजेंट का क्या काम है जी? आप उसके पास चले गए या गलती से रेफरेंस से, ठीक है, किसी भी प्लाजा में बैठा है, किसी भी घर में बैठा है, मोस्टली वो रेस्टोरेंट्स में भी मिल लेते हैं, ठीक है, उसने मिल लिया, उसने आपको कह दिया भाई 40 लाख से तेरा कम हो जाएगा, तू जा बैग पैक कर, ठीक है, ये स्टेटमेंट, ठीक है। मेरे साथ तो हुआ, मुझसे चूंकि एडमिशंस लेते थे लोग कनाडा और यूएसए का, तो ये करते थे, स्टूडेंट्स को ये स्टेटमेंट देते थे, तो बच्चे से डॉक्यूमेंट्स पकड़े, उनको जो भी टेम्परिंग करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है करके यूनिवर्सिटी से दाखिला मंगवाया, या जैसे हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमसे वो एडमिशन लिया और स्टूडेंट को कहा लो जी दाखिला हो गया, फीस दे दी। तो कोई क्रॉस चेक्स नहीं है फॉर टेम्परिंग? स्टूडेंट नहीं करना ना, स्टूडेंट नहीं करना, नहीं क्रॉस टेम्परिंग का तो हमारा काम है। बिल्कुल। उसके बाद सेकंड स्टेज पर यूनिवर्सिटी की कंप्लायंस तो होना ही चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मोस्टली हम भी इग्नोर कर जाते हैं कि बच्चा लेके आया, डॉक्यूमेंट तो ठीक ही है, भेजो। यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने भेजा, ठीक है एडमिशन दे दो। डिपॉजिट पे जाके वो एजेंट ये करता है कि आपसे पैसे पकड़ लेता है कि वो $10,000 का एक आ गई है नॉइस तुम्हारी, तो दो मैं तुम्हारी फीस जमा करूं। अब $10,000, इट कैन बी कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, कोई भी डॉलर उससे अज्यूमिंग इज यूएसडी। नाजरीन आजकल के दिन में 30 तारीख है, ऑलमोस्ट लाइक अगर आप ओपन मार्केट लें तो 3 मिलियन रुपीज स्ट्रेट अप तो ले लिया उसने। उसके बाद ये भी पॉसिबल है कि वो इधर उधर हो जाए, उनके फोन नंबर बंद है तो आपको बंदा नहीं मिलता। और चूंकि वो एजेंट है एंड डज नॉट हैव एनी एंटिटी अप्लाइड टू इट, तो आप किसके पास जाएंगे? बोलेंगे भाई वो बोले कहाँ मिला। हाँ एग्जैक्टली, किसी को भी नहीं पता, कंसल्टेंट भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने मुझसे एडमिशन लिया है तो मुझे तो नहीं पता ना, मुझे तो एक कॉल आई कि मैडम एडमिशन ये वाला भिजवा दें, हमने एडमिशन रिलीज किया, उसको भिजवा दिया, नेक्स्ट डे डिपॉजिट करा दो। अब वो डिपॉजिट लेके भाग जाए तो फिर क्या करें? तो मैं हर कोई भी इंटरव्यू हो, कहीं पे भी बैठी हूँ, मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बैंक को वेरीफाई किया करें, किसी के हाथ में पैसे ना दिया करें। स्पेशली मैं डायरेक्ट एड्रेस करके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि प्लीज अकाउंट वेरीफाई किया करें। अकाउंट का जो टाइटल है वो यूनिवर्सिटी नेम का होना चाहिए, कोई एबीसी टाइटल ना हो, और जितनी भी आई है फीस उसको फ्लाईवायर पे जाके उसकी इनवॉइस निकालें, फिर बैंक में या वेस्टर्न यूनियन में लेके जाएं और खुद अपने हाथ से जमा करा दें। कोई साइंस नहीं है हमारा, कोई साइंस नहीं है, पैसे हैं बैंक ने या वेस्टर्न यूनियन ने,
एग्जैक्ट आपको बता दूं इतने पैसे नहीं, लेंगे इतनी मेहनत कर ही ली है, इतना रिसर्च किया है आपने, तभी आपके एडमिशन के Research ही तो मुताबिक। नहीं करनी हमने। हाँ, ये जो है ना एक बहुत बड़ा, आई फील मेहनत जो है ना काफी उस सिलसिले में जो है ना जरा कम होती है। बट इन एनी केस, सो आपने मुझे रेड फ्लैग्स के बारे में बता दिया, आपने मुझे बता दिया हाउ डू बिजनेसेस मेक मनी। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाउ वुड एक स्टूडेंट या फिर पेरेंट गेज किस तरह करेंगे ये मेरे बच्चे के लिए अच्छी कंसल्टेंसी है, ये बुरी कंसल्टेंसी है, वो क्या, वो कौन से ग्रीन फ्लैग्स होंगे जो एक इंसान को देखने चाहिए कंसल्टेंसी में? अच्छा, पहले तो मैं कहा करती थी कि देखा करो प्रॉपर ऑफिस है किसी का, कोई 2-4 साल पुराना बंदा बैठा हुआ है, नंबर तो नहीं कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा वो बंदा। अब मैं कहती हूँ कि आप लोग प्लीज, आपके हाथ में है सब कुछ, ओपन करें, देखें वो बंदा ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी कोई वेबसाइट, उसका कोई सोशल मीडिया पेज, उसके रिव्यू, सारा कुछ देख के फिर डिसाइड करें। लेकिन अगर आप उसको सर्विसेज चार्जेस तो मोस्टली नहीं होते कंसल्टेंसीज के, अगर सर्विसेज चार्जेस दे रहे हो तो फीस ना दो, तब भी आपकी सेविंग हो जाएगी। हर जगह अपना कार्ड यूज करें फॉर द पेमेंट्स, उसको ना कैश करें, तब भी आपके साथ हैंड कम हो सकता है। और अपने फ्यूचर प्लान ओपनली जरूर डिस्कस करें। और पता नहीं अभी एंड हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप भी कीजिएगा, मैं भी करती हूँ, प्लीज अपनी एजुकेशन जरूर कंप्लीट करें। किसी भी कंट्री में कोई भी प्रोग्राम, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, जब तक आपके पास इंटरनेशनल डिग्री नहीं है, उस कंट्री में आपका कोई फ्यूचर नहीं है। इट्स वेरी हार्ड दीज डेज, नो डाउट, नो डाउट। बट एनी केस, आपने हमें सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया था, कैम्ब्रिज और ISF, एंड आई फील के not a lot of consultancies have those. So you should always opt for consultancies that are certified and have those things. So let's move towards the closure of this podcast primarily. And I like from this discussion मुझे एहसास होता है कि experience trumps a lot of things. ठीक है? So whenever you are choosing something, कोई भी चीज हो, ठीक है, and you want advice for it, so do not go for the person that might be most expensive, might be most cheap, whatever. Go for the person who you feel is the most experienced in that field. तो उससे आपको ये फायदा होगा कम से कम कि at least you know you're getting worth from your money. So आखिर में जाते जाते हम एक छोटी चीज पे बात करेंगे, ठीक है, कि can students एक like top tier universities से हो, mid tier universities से हो, anyone who's self aware knows how to use the internet well to their advantage, वो लोग रिसर्च कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स को खुद करना चाहिए ये प्रोसेस? लाइक ऑब्वियसली वो कर तो सकते हैं, लेकिन फवायद क्या हैं टू हैव अ कंसल्टेंसी ऑन बोर्ड? यू एक्सप्रेस्ड अर्लियर के एक्सपीरियंस एंड कनेक्शंस एंड स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस, बट आई फील इस पहलू का जवाब मुझे थोड़ा बहुत खुद ही आ गया है कि स्टूडेंट शुडंट बी फोकसिंग ऑन अ लॉट ऑफ निटी-ग्रिटीज बट ऑन बिल्डिंग देयर प्रोफाइल। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं ये कहती हूँ कि हाँ ठीक है, आप एक सिंगल प्रोफाइल को सर्च आउट कर रहे हैं, आप गूगल सर्च कर लेंगे, आप AI क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन एक बंदे के पास 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप कनाडा सोच के आए, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही और आप अप्लाई कर देंगे और आपका जो पासपोर्ट डिनाइल के बाद खराब होएगा ना, उसका कोई हल किसी कंसल्टेंट के पास नहीं है। तो आप तो सोचते तो आप कनाडा ही है, सोचते तो आप ऑस्ट्रेलिया ही है, आप चाहते हैं आप कॉमनवेल्थ में ही जाएं, तो कंसल्टेंट को पता है आपकी एलिजिबिलिटी और आपका बजट इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसलिए बेटर आप डिस्कस जरूर कर लें किसी कंसल्टेंट से, और जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, तो उनके सर्विसेज चार्जेस नहीं होते हैं, या तो उनके सर्विसेज चार्जेस होते हैं अगर तो बहुत कम होते हैं, ठीक है, उनकी जायरा यूटिलिटीज हैं उसके लिए, लेकिन मोस्टली डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के सर्विसेज चार्जेस नहीं होते। तो फिर फ्री में डिस्कशन करने जाने ओपिनियन जरूर लिया करें प्लीज। ये नहीं फोन करके मैसेजेस करके एक सेकंड में दे दीजिए। नहीं बिल्कुल बोलूंगी। नहीं बिल्कुल बोलिए, स्पीक फ्रीली। मैं कहूंगी आप सबसे, प्लीज मैसेजेस के ऊपर आप बाहर नहीं जा सकते, प्लीज प्लीज आप मुझे, मेरी टीम को, किसी बड़े कंसल्टेंट को, छोटे को, नए को SMS कर रहे हैं, वॉइस मैसेज कर रहे हैं, मैंने बाहर जाना है, मैंने आपका सोशल मीडिया देखा, ऐसे नहीं होता। उठे अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़े और 10, 12, 2, 4 लोगों के पास जाएं, अपना कोर्स डिस्कस करें, उससे आपके पास ऑप्शंस निकलेंगे।
Yes. नहीं, एसएमएस नहीं, वेला बंदा आपको रिप्लाई कर देगा, अच्छा प्रोफेशनल बिजी बंदा रिप्लाई नहीं कर सकता. But I feel the biggest extract from that statement is कि वही वाली बात जो हमने पहले की थी कि पहला कदम is very important and to have it in the right direction, उसके लिए you need to have completeness of information. Completeness of information का यही मतलब है कि मेरे जहन में है कि यार बस कनाडा एक बस टनल विजन के साथ मैं कनाडा इधर जा रहा हूँ, पता चले कि that's a blockade right in front of me. तो मुझे नहीं पता what are my options remaining. Somehow someone might recommend कि यार you're the best person for China, you will be leading a global edge company, technology company then 20 years or no time, something like that. So I feel it's really important that you involve professionals into these decisions that are very big in your life. And so the closing statement that I want to part with is कि we as a country and as a people, हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरे लोगों के ओपिनियंस पे कि हम लोग खुद बहुत कम सोचने लगे. ठीक है कि यार ये इसने कह दिया, हेरसे पे चलते हैं. And I want to take this opportunity inshallah from this series and all the other podcasts that we do is that हम आपको सलाहियत देना चाहते हैं कि आप खुद सोचें. हमने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कोई ऐसी बात नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही हैं, व्हाटएवर. हम आपको इतनी सलाहियत देना चाह रहे हैं कि यार आप खुद सोचें कि क्या चीज ठीक है आपके लिए, क्या चीज आपके लिए बेनिफिशियल है, उसको प्रोज एंड कॉन्स खुद देखें, उसके सारे के सारे पहलू खुद देखें. एंड आई फील यही हमारा मकसद है. So in that regard, we want to continue this series of educating people of what's best for them, for their educational purposes for this particular series. And what I request the audience is कि आप लोग हमें comment section में जरूर बताएं कि which countries in specific do you want to know more about. For instance, you want to know about Canada, Australia, New Zealand, UK, anywhere in Europe, even Japan, China, South Korea, whatever. Any country that you're interested in that you want to go to for educational purposes, higher, lower, postgrad, whatever. ठीक है, comments में बताइए आप. और हमारे पास behemoth quality of consultants हैं, of advisors हैं within our favorites, within our speed dials. So we'll have them on board, we'll have them on camera, we'll ask the questions that you want answered, and we'll take it from there. So this is the first time saying this, but hopefully not the last. Strive for excellence in education. Thank you so much. Have a great day.